all of you. ओके, कंटिन्यू करते हैं। एनपीओ कुछ नया करेंगे आज। टेक आउट सम नंबर। ट्वेंटी फोर्थ सम। मोस्टली आज रात या कल तक आपको पेपर्स मिल जाएंगे डेप्रिसिएशन के टेस्ट के। अच्छा लिखा है, ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं है, गुड। बट देन अगेन थोड़ा करेक्शन, मतलब कैंसलेशन और शॉर्ट फॉर्म्स एंड ऑल में गया आधा एक मंथ, बट ओवरऑल इट्स गुड। चलो करें आगे स्टार्ट। शुभारंभ। रौनक को क्या हो गया? कोई टच में है क्या रौनक के? थोड़ा सा बीमार चल रहा है वो। थोड़ा सा बीमार, 3 दिन। कोरोना तो नहीं हो गया उसको? 3 दिन से डांडी मार रहा हूँ। I'll talk to him today. चलो, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। हाथ धोते रहना, मास्क पहनते रहना, और तो कुछ रास्ता नहीं अपने पास। ठीक है, चलो सम नंबर 24। सम नंबर 24 लेते हैं। From the following particulars, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 07 and balance sheet as on that date for Progressive Club Bombay. So कैपिटल फंड अगर देखो तो नीचे दिया हुआ है, तो 1 लाख। तो आई डोंट थिंक सो यू नीड टू मेक एनी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट का समय। लेकिन फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंस इनकम को ध्यान से देखना है। ओके, ये अगर अच्छे से समझ आ गया तो आपको नेक्स्ट सम भी अच्छे से समझ आ जाएगा। वहां पे विल बी मेकिंग direct balance sheet with the help of receipt, payment and income and expenditure. Okay, so 24th sum, let's start. Okay, all of you pay attention. Salaries 2006 and 2007. What is the current year? Current year is I think 2007, right? So 2006-7, 6-7 is the current year. So 7 का salaries कहाँ जाएगा? Current year का salaries कहाँ जाएगा? Expenditure. और 06 का सैलरी कहाँ जाएगा? 06 का यहाँ पे पे किया है। Opening balance sheet. ओपनिंग बैलेंस शीट में कहाँ पे? Liability. लाइबिलिटी। जैसे याद है योर वाइज सब्सक्रिप्शन आता है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, रिसीवेबल ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड इन दिस ईयर। सेम वे ये लास्ट ईयर का अभी पे किया है, तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट लाइबिलिटी, लास्ट ईयर पेएबल होगा, राइट? एंड विल यू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम सैलरीज? विल यू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम सैलरीज? No. योर वाइज दिया तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। ओके, रेंट तो एक साथ दिया हुआ है, तो रेंट इज सिंपली योर एक्सपेंस। पोस्टेज इज आल्सो योर एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दोनों दिया है वापस 6-7। आई थिंक 7 इज करंट ईयर, सो इट शुड गो टू एक्सपेंडिचर। एंड 6 का कहाँ जाएगा? 6 का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आई थिंक that will go to again opening balance sheet liability. Opening balance sheet liabilities, because it was payable in the last year, that's why you have paid it in this year. That's why you have paid it in this year. Okay, closing balance, that is current year ka closing balance, current assets, right? Opening balance कहाँ जाएगा? Opening balance, so that should go to last year balance sheet asset, opening balance of cash. Okay, donations के बारे में पढ़ो, कुछ information है क्या donations के बारे में? Is there any information about donation? I don't think so. No information is given. So what are you supposed to do with donations? Donation, subscription, Income. subsidy. कुछ नहीं दिया तो income. Donation, subsidiary, grants, ये सब income. Okay, और ये लिख देना अपना assumption. It is assumed that donation is a revenue receipt, hence credited to income and expenditure account. Okay, write your assumption at here. Subscription वापस 3 दिया है, 6, 7 and 8. Where you will write 6 का? 2006 का subscription should go to
Opening assets. Opening assets. Will you subtract it from subscription? Will you subtract it? No. Again year wise दिया है तो minus करने की जरूरत नहीं है. 07 का subscription I think should go to income. Shraddha, are you understanding? 07 का subscription should go to income. Okay. And 08 का subscription कहाँ पे जाएगा? Liability of current year. बराबर है? So will you subtract it? Current year का receive in advance? No. Again year wise दिया है तो minus करने की जरूरत नहीं है. I think this concept should be clear by this time now. Year wise दिया है तो minus करने की जरूरत नहीं है. Surplus वाले adjustment ही होंगे. चाहे वो expense हो चाहे वो income हो. Entrance fees is to be capitalized दिया हुआ है. So add to capital fund करना है. Interest on investments are income. Expenses outstanding as on 31st March 07. Outstanding as on 31st March 07. That means they are current year outstanding, right? 31st March 07 is current year outstanding, right? Okay, so current year outstanding salaries, outstanding salaries of current year. कहाँ जाएगा? 2FX, 1FX. Anush Add to salary. Add to salary. Liability. Add to salary and liability. 2FX. Okay, payable है current year का. Printing, outstanding printing same है, current year का outstanding है. Add to current year printing and liabilities. बराबर है. Then other balances on 1st April 06. What is 1st April 06? Last year. Current year. Opening. Sorry, last year. मतलब opening है. बजा रहा है यार यहाँ पे. Current year का opening balance है. Okay, capital fund. Okay, capital fund. So 1st April 06 का capital fund is the opening capital fund. So इसका sorry, last year का closing, this year का opening. Last year का closing, this year का opening. So that is your inner column वाला capital fund दिया हुआ है, calculate करके opening balance sheet बनाने की जरूरत नहीं. Very next item you will find is income and expenditure account 11,500. Now what do you mean by that? सरप्लस डेफिसिट का इफेक्ट किसमें से देने का? Last year का. सिर्फ लास्ट ईयर का कि लास्ट टू लास्ट जितने साल सब ईयर्स का इसमें ही जमा हो रहा है, कैपिटल फंड से कुछ नहीं किया है. हाँ, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसका मतलब है कि आपने जो हर साल के पिछले साल के सरप्लस और डेफिसिट्स थे वो आपने कैपिटल फंड में नहीं किया, एटलीस्ट वो आपने अलग अकाउंट में दिखाया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. सो नथिंग डूइंग, नॉट अ बिग थिंग. It is just a part of capital fund. It is just a part of just like partnership में you had capital and current account. Capital remain fixed. All the adjustments used to do in current account. तो यहाँ पे organization ने capital fund अलग दिखाया है, surplus deficit अलग account में दिखा रहा है, that is income and expenditure account. It is a part of capital fund. खाली उसको अलग करके information के लिए दिखाते हो, ठीक है? So now what do you need to remember in the problem? बाकी सब adjustments आपको capital fund में करना है. जैसे कि एंट्रेंस फीस है, डोनेशन सपोज कैपिटलाइज है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, लेगेसीज है. So all the other adjustments you are supposed to do it with capital fund except for one. What is that? Surplus or deficit. जो surplus या deficit है उसको आपको कैपिटल फंड में एडजस्ट नहीं करना है, उसको आपको अलग से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है. डोंट ऐड इट टू कैपिटल फंड. उसने कोई रीजन से अलग दिखाया. एंड प्रैक्टिकली जितने ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ बनाते हैं, एनपीओ के हिसाब से अकाउंट बनाते हैं, उनका हमेशा कैपिटल फंड अलग रहता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अलग ही रहता है. हमेशा सरप्लस और डेफिसिट अलग अकाउंट में ही दिखता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ओके, आप अपने हाउसिंग सोसाइटीज के एनुअल रिपोर्ट आते होंगे ना हर साल के एंड में, उसको उठा के देख लेना, यू गेट द डिटेल्स. ओके, तो करंट ईयर, लास्ट ईयर 2 साल के इन्फॉर्मेशन होंगे और इनकम एक्सपेंडिचर अलग से दिया होगा हमेशा. सो रिमेंबर दैट हमेशा कैपिटल फंड प्रैक्टिकली अलग होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अलग होता है. तो जो सरप्लस या डेफिसिट होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड या लेस करके दिखा देगा, कैपिटल फंड में नहीं करने का. बाकी सब कुछ कैपिटल फंड. इज दैट क्लियर? सरप्लस डेफिसिट को अलग से इंफॉर्मेटिव दिखाने के लिए क्या हो रहा है, करंट ईयर सरप्लस डेफिसिट, लास्ट ईयर सरप्लस डेफिसिट. सो अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है. yes, income and expenditure is a nominal account just like P&L account. So how can it have balances? It becomes a reserve if you keep it pending, like your P&L account याद है liability में आता था general reserve, revenue reserve. It is a reserve, it is an inter liability. Current year income and expenditure is nominal, but if you keep on accumulating it, it becomes a internal liability, a part of capital, just like reserves. Got it? Not 1 year's income and expenditure. This is अभी तक का accumulated. So this is an internal liability. Got it? Reserves के जैसा. So अलग से दिखाना है इसको reserves में, अपना not reserves में, अलग से ही दिखाना है in your liability side, okay, as your income and expenditure account, separate from capital.
एंड इसमें दिया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ? दैट इज योर सरप्लस, अक्यूमुलेटेड सरप्लस. व्हाट इफ इट हैड डेबिट बैलेंस? डेफिसिट. अक्यूमुलेटेड डेफिसिट हो जाता है. अब तक के सालों का डेफिसिट हो जाता. वो कहाँ दिखता? एसेट साइड. एसेट्स में. याद है पीएनएल दिखता था आपको एडमिशन रिटायरमेंट में कभी कभी. That was accumulated loss. So this is like your accumulated deficit. You show it on the asset side. Now over here, it is having credit balance. So we show it on the liabilities. And if there is any surplus, what are we supposed to do? Add. And if there is any deficit, we subtract. What if it was a debit balance and then you get a surplus? Subtract. डेबिट बैलेंस मतलब अभी तक के डेफिसिट है और इस साल सरप्लस हुआ है ना, तो आप माइनस कर दोगे ऑब्वियसली. डेफिसिट को कम करना है. और व्हाट अबाउट डेबिट बैलेंस है एंड फर्दर डेफिसिट हुआ तो Add. इफ यू गॉट दैट लॉजिक, सिंपल. तो क्रेडिट बैलेंस मतलब अक्यूमुलेटेड सरप्लस है पिछले सालों का, उसमें आप इस साल का सरप्लस ऐड कर दो नॉर्मली जैसे करते हो वैसे. और जनरली क्रेडिट बैलेंस ही होगा. जैसे पीएनएल का भी क्रेडिट बैलेंस मैंने बताया था, याद है? कुछ नहीं दिया तो प्रॉफिट, पीएनएल का क्रेडिट अज्यूम करता है. ऐसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी जनरली इट इज गोइंग टू बी क्रेडिट बैलेंस. Comfortable with this income and expenditure thing? All of you got that? सर बोलो. अगर ये एसेट साइड में होता 2000 और सरप्लस आता 3000, तो वो फिर किधर लिखता है? एसेट साइड में 2000 होता और सरप्लस 3000 होता तो क्या करोगे? 2000 माइनस जीरो कर दो और लाइबिलिटी साइड को 1000 नेट सब. हाँ. क्या डेबिट बैलेंस राइट ऑफ होके अभी क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा. ओके. सेम गोस फॉर क्रेडिट बैलेंस. इस साल क्रेडिट बैलेंस है 11500 का और डेफिसिट हुआ 12000. 11500 पूरा जीरो हो जाएगा और एसेट साइड पे दिख जाएगा 500 रुपया इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इज दैट क्लियर? परफेक्ट. नाउ फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट. कौन से फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट करंट ईयर की लास्ट ईयर के फर्नीचर और लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट्स. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 07. आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 07 मतलब कौन सा आउटस्टैंडिंग है? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है. सो 07 current year. So क्या करोगे? Outstanding subscription of current year. Add to subscription and assets. Okay. Small problem. Let's start. Try it on your own. I'll solve it. Let me know if you have any doubts. Concept important था last year current year का और income and expenditure का. Number 24. So just like P&L, income and expenditure is for the year ended, okay? And balance sheet is as on that date. Is single balance sheet. Salary is for 06. Last year's balance sheet, just for your understanding, I'm making it over here. No need to make it. Current year का है.
सर यस मतलब दिस इज डन सम, सॉरी। ये सब हो गया है मेरा, तो नेक्स्ट कौन सा चालू कर? अरे यार तुम राजधानी पकड़ के बैठी हो, रुको जरा। मांगी खुना चालू करता हूँ, खत्म हो जाता है दोबारा। होमवर्क दिया कल 10 मिनट में हो गया। आराम से करो, आराम से, स्लो एंड स्टेडी, आराम से रखो। स्पीड इज गुड, बट देन रीचेक 4 फुट, गुड स्पीड। सर 1200 का डेफिसिट है। हाँ 1200 डेफिसिट। टैली हो गया? हाँ हाँ लोग फास्ट हो गए अभी, बढ़िया है। सर। यस। अब ये 1200 डेफिसिट आया तो बाद में वो सरप्लस कैसे दिखानेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर 11,500, हाँ साइड इनर कॉलम माइनस डेफिसिट अच्छा 12 सरप्लस होता तो प्लस सरप्लस हाँ डेफिसिट, लेकिन अलग से कैपिटल फंड में नहीं, इनकम हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं? नहीं बनाने का, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम मेकिंग। तो सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऐड नहीं होगा कैपिटल? नहीं होगा यार, वही तो बोल रहा हूँ मैं, उसको अलग से दिखाना है। उसने ना ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक का सब सरप्लस अलग से मेंटेन किया है, तो हम लोग भी अलग से ही दिखाएंगे। जो भी सरप्लस डेफिसिट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अलग से दिखाएंगे। डोंट ऐड इट टू कैपिटल फंड, शो इट सेपरेटली। प्रैक्टिकली ऐसे ही होगा, हर बार हम कैपिटल फंड अलग दिखेगा और आपका सरप्लस डेफिसिट अलग दिखेगा इनकम एक्सपेंडिचर का। बाकी सब एडजस्टमेंट कैपिटल फंड में होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अलग से दिखता है, जस्ट टू कंपेयर द सरप्लस एंड डेफिसिट ईयर ऑन ईयर, सी द चेंजेस। और हो सके तो कैपिटल के नीचे दिखाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, just like you used to show reserve. It is a type of reserve basically for the NPO. Okay? लास्ट ईयर 11,500 था इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये 1,12,000 आया होगा टोटल, 1,12,500, सॉरी 1,12,500।
लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग और सैलरी लेके अपने को कैपिटल फंड आया होगा 1 लाख। जो कैपिटल फंड यहाँ का ओपनिंग हो गया और डेफिसिट आ रहा है ना, टोटल कितना है 9 + 2 11 + 4 13700 1200 आया ना डेफिसिट। यस सर। कैपिटल फंड आएगा 1,02,000। 114500 पे होना चाहिए। Please check 114500। Finish all of you? Done. Next sum, something new. Problem number 23। ठीक है, ऊपर 23 23rd sum। दिमाग लगाने का प्रॉब्लम है। ओके 23rd sum, the receipt and payment account and income and expenditure account of a sports club for the year ended 31st December 2017 were as follows। receipt and payment and income and expenditure दोनों दे दिया है and बनाने को क्या बोला है, supposed to make the balance sheet as on 31st December 16 and 31st December 17। ठीक है, so how to approach this type of problem now? ये हो गया सबका 24th हो गया है ना। sum, how to approach now? सर सम नंबर 23rd sum 23 उसी से पहले वाला 23। now how to approach this type of problem? so logical है, ऐसा कोई particular method नहीं है, खाली थोड़ा easy करने के लिए एक method है। just compare the payment side with your expenditure and compare the receipt side with your income। compare the payment with your expenditure, compare the receipt with your income, and you arrive at the conclusion whether something is outstanding or prepaid or receivable or received in advance, because those things only will go to your balance sheet। are you understanding? रिसीट और इनकम को कंपेयर करना है, पेमेंट और एक्सपेंसेस को कंपेयर करना है और वहां से आपको कंक्लूड करना है लॉजिकली सोच के, क्योंकि कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड रिसीवेबल रिसीव्ड एडवांस वो आपको दिख जाएगा। you know the basic distinction between receipt and payment and income and expenditure। remember the 3 points। कैपिटल रेवेन्यू का डिस्टिंक्शन रिसीट पेमेंट में नहीं होता है, तो एसेट वगैरह अगर दिख गए तो वो चले जाएंगे बैलेंस शीट में। दूसरा अक्रूवल और कैश, यहाँ पे कैश है यहाँ पे अक्रूवल, तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड रिसीवेबल रिसीव्ड एडवांस आपको मिल जाएगा। एंड तीसरा था अपना लास्ट ईयर करंट ईयर आइटम्स, तो लास्ट ईयर आइटम्स अगर रिसीट पेमेंट में तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट, नेक्स्ट ईयर वाले तो नेक्स्ट ईयर बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर वाली होंगी। ओके और कैश और नॉन कैश बताया था पहला ही डिफरेंस, कैश और नॉन कैश। तो डेप्रिसिएशन वगैरह है, यू विल फाइंड इट ओनली इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नॉट इन रिसीट एंड पेमेंट। ओके तो लॉजिकली सोच के हर एक आइटम को जांच परत के आपको लिखना है दोनों बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट बना के अलॉन्ग विद द सम आई विल एक्सप्लेन यू। ओके 2 बैलेंस शीट ड्रॉ कर लो। 2 balance sheets you draw, 31st March 16 and 31st March 17। 31st March 16 and 31st March 17। Single column is enough just for suppose जरूरत पड़े तो I'm making 2 columns। Actually single column balance sheet in these sums are enough। There are no adjustments plus minus का खास करके, सब प्लस वगैरह का एक आधा आएगा। just in case if there's any need, then we can make 2 columns। this is balance sheet as on 31st December 16 and balance sheet as on 31st December 17। okay दिमाग लगाना है, लॉजिकली करना है, इट्स लाइक अ पजल। यू हैव टू सी द आइटम्स एंड यू हैव टू इन्फर कि कौन सा ओपनिंग कौन सा क्लोजिंग में जाएगा। रिसीट पेमेंट भी करंट ईयर का है, इनकम एक्सपेंडिचर भी करंट ईयर का दिया हुआ है बना के। ठीक है नीचे एडजस्टमेंट्स में पढ़ो क्या दिया है। द क्लब्स एसेट्स एज ऑन 1st January 17। व्हाट इज 1st January 17? करंट ईयर फर्स्ट डे ओपनिंग, करंट ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर क्लोजिंग, राइट।
सो इतना बिल्डिंग, इतना बुक्स, इतना फर्नीचर, इतना इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर से था. Liabilities as on that date were 100 rupees for advertisement and 200 for salaries. मतलब as on that Opening liability. opening liabilities. Okay, now let's start the comparison. Compare first your payment side with your expenditure side. Okay, so books purchased, you can see books purchased, right? So try to finish पूरा asset का story जैसे normally खत्म करते हो. तो check करो books कुछ last year थे क्या तुम्हारे पास? Were there any books in the last year? Yes. अभी देखो opening balance में दिया हुआ है books. कितना दिया है books? 20,000. Okay, अलग समय गाय मत करना, आराम से करना. Books are 20,000 outer column. Okay, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग था. You bring it them down to this year books 20,000 and you check for 3 items. There can be 3 possibilities: sale, purchase or depreciation, right? Is there any sale of books? अगर होता तो कहाँ था? receipt Each side. में दिखता है, रिसीट में आता है ना, टू सेल ऑफ बुक्स, सेल वैल्यू देते हैं. वैल्यू सेल तो है नहीं, परचेज हुआ है, यस, पेमेंट में दिख रहा है परचेज. इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट रिसीट पेमेंट में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता कैपिटल रेवेन्यू का. सो बुक्स में ऐड कर देना है परचेज. तो ऐड परचेज ऑफ बुक्स. कितने का और बुक्स खरीदा है हमने? 2000 का. अच्छा, ये तो हुआ. तीसरा एडजस्टमेंट क्या पॉसिबल है इस पे? डेप्रीसिएशन. अगर कुछ डेप्रीसिएशन अगर चार्ज किया होता बुक्स पे तो कहाँ दिखता? expenditure एक्सपेंडिचर में दिखता कि पेमेंट में दिखता? expenditure एक्सपेंडिचर नॉन कैश आइटम, राइट? इट इज अ नॉन कैश आइटम. तो चेक ऑन द एक्सपेंडिचर साइड. डू यू सी एनी बुक्स पे डेप्रीसिएशन या रिटर्न ऑफ? आई डोंट थिंक सो. There is depreciation on building, but there is no depreciation on books. That brings us to the conclusion that we haven't charged any depreciation. Books पे कोई depreciation charge नहीं हुआ है. Are you understanding? Okay. होता अगर कुछ डेप्री तो नॉन कैश आइटम है, एक्सपेंडिचर में दिखता. तुम ही लिखते हो इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हो, डेप्री लिखते हो ना लास्ट में, तो होना चाहिए वहां पे, नहीं है. चलो बढ़ते हैं आगे. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. पेमेंट साइड पे देखो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दैट इज 400. सो आइडियली एक्सपेंस में भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 400 होना चाहिए. देखो कितना है, 400 ही है, 400 ही है. अच्छा, ऊपर नीचे कुछ एडजस्टमेंट में दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का लास्ट ईयर का? कुछ चेक कर लेने का नहीं है. मतलब लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर का फड़ा नहीं था. जितना पे किया सब करंट ईयर का था, पूरा का पूरा एक्सपेंस में दिखाई दे रहा है. नो प्रॉब्लम अबाउट प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग. सॉरी, एक्सपेंस है तो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग. इज दैट क्लियर? तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तो बैलेंस शीट में नहीं आता, इट्स एन एक्सपेंस. पेमेंट खत्म हो गया. सैलरी पेड है 3000, सो आइडियली एक्सपेंस में होना चाहिए. So check करो salaries in your expense. Is it 3000? 5,600. It is 5,600. It is 5,600. So what can you conclude? Outstanding. Outstanding. Which is outstanding this year? 2400. 400 will be out. सर लास्ट ईयर का 200 भी है ना, 200 Yeah. तो 2800 आएगा सर. हाँ, ये देखो ऐसे दिमाग चलना चाहिए. सात्विक का बराबर चला. देखो यहाँ पे क्या दिया है. ये मेरा सपोज मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूं मैं, ठीक है. दिस इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहले तो तुम पेड सैलरी लिखते. यू माइट हैव रिटन योर पेड सैलरी. पेड सैलरी कितनी थी? 2 सैलरी. पेमेंट कितना किया हमने? 3000. ठीक है. बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आउटर कॉलम में कितना दिख रहा है? 5600. अब वैसे तो देख के सीधा अंदाजा बांध सकते हो कि 2600 आउटस्टैंडिंग, स्टोरी ओवर. लेकिन एडिशनल इन्फो में दिया है नीचे कि लायबिलिटीज ऑन द फर्स्ट डेट में दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी बाय 200 रुपीज. कैन यू ऑल सी दैट? सो मतलब लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो ये साल पे किया होगा. एक्सपेंस की साइकिल पहले तुमने लास्ट ईयर का पे किया है, फिर करंट ईयर का, फिर नेक्स्ट ईयर का. तो पहले तुमने ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस किया होगा, फिर तुमने करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड किया होगा, अब जाके तुम्हें मिला होगा 5600. इसमें से एक इन्फो तो पता है, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग वाज 200. तो व्हाट इज करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग? इट इज 2800. डिड यू अंडरस्टैंड? सीधा सीधा नहीं दे दिया करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, घुमा के दिया है. पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में दिया कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 200 था, तो इस 3000 में तुमने 200 तो लास्ट ईयर का पे किया, हटाओ, तो करंट ईयर का खाली 2800 पे किया है तुमने.
लेकिन करंट ईयर का आइडियल एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंस, इनकर्ड एक्सपेंस इज 5600, so obviously current year's outstanding is 2800. Did you understand? Any doubt in this, all of you? अभी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कहाँ जाता है? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग गोस टू Last year liability. लास्ट ईयर लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी. एंड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग किधर जाता है? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर लायबिलिटी 2800. 2800. इज दैट क्लियर? ऐसे चेक करते करते बढ़ना है आगे आपको. समझ आई बात? ओके, नेक्स्ट वन. आफ्टर सैलरी, what do we have? After salary we have on the payment side we have advertisement. कितना है एडवर्टाइजमेंट? 400. तो आइडियली एक्सपेंस में भी 400 होना चाहिए. देखो है क्या? नहीं है भैया, 300 है. 300 है. क्या हुआ होगा एडवर्टाइजमेंट में? कोई बता सकता है? Prepaid 100. Is it prepaid 100? Last year का 100 पे किया था. आउटस्टैंडिंग है. हाँ, देखो इन्फॉर्मेशन में दिया है नीचे, एडवर्टाइजमेंट में दिया है लायबिलिटीज एज ऑन दैट डेट. तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 100 रुपया था, राइट? वो तुमने ये साल पे किया होगा, इंक्लूडेड होगा. प्लस करना है कि माइनस करना है? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस करना है. तो माइनस आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ लास्ट ईयर, माइनस क्या होगा? 100 रुपया. अब आ रहा है क्या? 300 रुपया. परफेक्ट है. आउटर कॉलम 300 ही दिया है वहां पे. करेक्ट? हेलो, ऑल ऑफ अंडरस्टूड? इंफॉर्मेशन में था. अच्छा, इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं दिया होता एडवर्टाइजमेंट का तो फिर प्रीपेड. तो फिर प्रीपेड होता. करंट ईयर का प्रीपेड हो जाता. ठीक है, करंट ईयर का प्रीपेड होता. ये 500 रहता तो भी 100 प्रीपेड हो जाता ना सर? ये आउटर कॉलम 500 होता तो हाँ, आउटर इनर कॉलम 500 होता. इनर कॉलम 500 होता तो भी करंट ईयर का 100 रुपया प्रीपेड है. आउटर कॉलम 500 होता तो पेड इन एडवांस. करंट ईयर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हो जाती. इट वुड हैव बीन करंट ईयर आउटस्टैंडिंग. प्रीपेड कैसे है? प्रीपेड 500 रुपया अगर ये होता ना, ये 400 की जगह 500 होता, ये 400 की जगह 500 होता ना, तो फिर 100 रुपया तो लास्ट ईयर का पे किया, फिर भी 100 रुपया कम पड़ रहा है, तो 100 रुपया प्रीपेड होगा, इसलिए माइनस किया होगा. नेक्स्ट आइटम देखो, एडवर्टाइजमेंट के बाद वी हैव इलेक्ट्रिक चार्ज 800 रुपया पे किया है, और एक्सपेंस में कितना दिख रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज 800 ही है. कुछ दिख रहा है इन्फॉर्मेशन में नीचे ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज का? पढ़ लो. एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज? नो. तो आई थिंक जितना पे किया है सब करंट ईयर का. नो प्रीपेड, नो आउटस्टैंडिंग, झंझट नहीं. बैलेंस शीट में वैसे भी नहीं आता एक्सपेंस. समझ आई बात? बढ़ो आगे. बैलेंस कैरी डाउन. व्हाट इज बैलेंस कैरी डाउन? करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस. तो करंट ईयर बैलेंस शीट, एसेट साइड कैश एंड बैंक. Closing balance is I think 14,700. Got it? Opening balance कहाँ जाता है? तो last year asset, opening balance sheet, cash and bank, opening asset, last year asset. बाकी सब asset में तो प्लस माइनस दिखा दो. कैश बैंक का प्लस माइनस ये पूरा रिसीव पेमेंट में दिख रहा है, तो अपने को यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखना है. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज सब्सक्रिप्शन 16 एंड 17. अभी 16 का देखो पहले. 16 का कितना था? 1200. 16 का इट वाज 1200. तो वेर यू विल शो 16 का सब्सक्रिप्शन 1200? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड. परफेक्ट. ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट का ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि मिला है ये साल. और कुछ राम का नहीं दिया है सब्सक्रिप्शन का कहीं पे. एक्सपेंस के इनकम के साथ हम लोग कंपेयर करके ढूंढेंगे. नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है ना सब्सक्रिप्शन का. लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख दो भैया. कितना था लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग? 1600. ये मिला होगा आपको ये साल. सॉरी 1200. ये 1200 आपको मिला होगा ये साल, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. बराबर है. अभी करंट ईयर का कितना रिसीव किया ना? 8600. तो आइडियली इनकम साइड पे भी 8600 ही होना चाहिए ना, अगर पूरा का पूरा करंट ईयर का है तो. लेकिन अगर हमने इनकम साइड चेक की तो हमें कितना मिल रहा है सब्सक्रिप्शन? 9600 दिख रहा है. So, देखो बना लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लो. क्या लिखोगे? बाय सब्सक्रिप्शन नॉर्मल सम की तरह इनर कॉलम में लिखोगे 8600. ठीक है. और आउटर कॉलम में कितना दिख रहा है? 9600. वो लोग ने दिया हुआ है, तो ये 1000 ऐड किया है. 1000 ऐड किया है. तो ऐड किया है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है.
क्या दो पॉसिबिलिटी हो सकता है ऐड किया तो? एक तो लास्ट ईयर प्रीपेड और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। हाँ, लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। व्हाट इज बेटर अजम्पशन? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। दोनों अज्यूम कर सकते हो आप, लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड या करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। आई वोंट अज्यूम फॉर लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड हियर बिकॉज सब्सक्रिप्शन जनरली करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है फ्रॉम द सम। लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड बहुत रेयरली मिलता है तुमको प्रॉब्लम्स में, ठीक है? वो जजमेंट लेके थोड़ा करने का कर सकते हो। लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड, इट्स नॉट रॉन्ग बट बेटर अजम्पशन, थोड़ा जजमेंट लेके करने का यहाँ। ओके, assumption लिखना है नीचे। you can write the assumption. Yes, you can write the supportive assumption. You can write. I'll give you in writing. Then rent नहीं है, sorry, क्या है? इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 1000 और इनकम में भी 1000 होना चाहिए आइडियली। इज इट 800? तो एक मिनट, इंटरेस्ट देख रहा हूँ मैं पहले। आई एम गोइंग थ्रू द रिसीट का ऑर्डर, रिसीट पेमेंट का ऑर्डर। तो बाय इंटरेस्ट 1000 था और यहाँ पे 800 हो गया, तो ये माइनस किया है तुमने 200 रुपया। क्या होगा ये माइनस 200? दो पॉसिबिलिटीज है। एडवांस रिसीव्ड इन एडवांस, या तो रिसीव्ड इन एडवांस है या तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। क्या बेटर लगता है? एडवांस। ये ईयर एडवांस बेटर इन केस ऑफ इंटरेस्ट इज लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। ओके, जनरली इंटरेस्ट आपको समझ में आता है बट नोबडी पेज इंटरेस्ट इन एडवांस। लाइक nobody keeps insurance outstanding, the policy will be lapsed। तो आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस नहीं हो सकता और इंटरेस्ट जनरली कभी कोई एडवांस में पे नहीं करता, पेंडिंग ही रहते हैं, ऐसा होता है। बैंक भी देखो, आप एफडी में डालोगे पैसे, बॉन्ड्स में डालोगे, कोई आपको इंटरेस्ट एडवांस में देगा? लॉजिकली सोचो, नो वन पेज इट। ओके, आपका सेविंग्स अकाउंट करंट पे तो मिलता नहीं है, सेविंग्स अकाउंट पे 3-4% मिलता है, वो भी आपका क्वार्टरली क्रेडिट होता है आपका बैलेंस को चेक करने के बाद। तो जनरली अगर इंटरेस्ट अज्यूम किया जाए तो रिसीव्ड इन एडवांस बहुत रेयरली पॉसिबल है। जब आपने कभी किसी को लोन दिया है या किसी पर्सनल एडवांस दिया है तो आपको मिलने का चांस है एडवांस। अदरवाइज लिख सकते हो, एडवांस लिख सकते हो, इट्स नॉट रॉन्ग। ओके, जस्ट स्टेट योर अजम्पशन। जैसे मैंने ऊपर बताया, सब्सक्रिप्शन में भी आप रिसीव इन एडवांस लिख सकते हो, ठीक है? बेटर अजम्पशन थोड़ा लॉजिकली क्या रहेगा, तो इट इज आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। ओके, वो रॉन्ग नहीं है, दूसरा भी लिख सकते हो, टेंशन मत लो, मार्क्स मिलेंगे आपको, बट थोड़ा जजमेंट के साथ जाना तो बेटर रहेगा, उस पे भी इंप्रेशन अच्छा जाएगा एग्जामिनर पे। तो बाय इंटरेस्ट दिस इज लेस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, लेस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो कहां जाएगा, लायबिलिटी की एसेट? एसेट। ये रिसीवेबल है लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर का कैसे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल था? हाँ, अगर ये लास्ट ईयर का होता तो वो लोग उधर ईयर मेंशन नहीं करते? नहीं, जरूरी नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन दिया उतना ही दिया अपने को, बस और कुछ नहीं दिया। एडजस्टमेंट किया कहाँ है वो लोग ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? कोई एडजस्टमेंट किया ही नहीं है, सीधा आउटर कॉलम वैल्यू दे दिया है। ओके, so with the help of available data and the given data we have to find out, that's it. Then we have donation for special fund. Now you all know very well donation for special fund इनकम में तो दिखता नहीं है, इसलिए वहां पे नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ जाता है वो? लायबिलिटी। करंट ईयर की लास्ट ईयर? करंट ईयर। करंट ईयर कैसे पता चला? करंट ईयर रिसीट में दिया ना यार, करंट ईयर में जाएगा। करंट ईयर रिसीट में दिया है 600 रुपीज डोनेशन फॉर स्पेशल फंड। इनकम में नहीं दिखना चाहिए, लायबिलिटी में दिखना चाहिए। कंफर्टेबल यहाँ तक? किसी को कोई डाउट्स? बताओ बताओ बताओ। समझ रहा है पक्का? हर्ष राजे, क्षणिक, कलरव, क्षमा, ठक्कर, मदित सुखिया। चलो नेक्स्ट वन। आफ्टर दैट वी हैव व्हाट? आफ्टर दैट वी हैव रेंट। 2016 का 300 रुपया अभी मिला है, मतलब 2016 में क्या होगा वो? बोलो। एसेट रिसीवेबल होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये तो लिख ही देना है, ये तो होना ही है 300 रुपया। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था डेफिनेटली था, और करंट ईयर का मिला है 600 रुपया। तो आइडियली इनकम में भी 600 तो होना ही चाहिए, है क्या? कितना है? 4600। भलता ही अमाउंट है 4600। लास्ट ईयर का कोई डेटा भी नहीं दिया है,
तो क्या हुआ होगा इनकम साइड जब मैंने लिखा होगा बाय रेंट, करंट ईयर का तो ऐसा रिसीव्ड 600 है, लेकिन आउटर कॉलम में हो गया 4600, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड किया है, तो क्या होगा ये, इज इट करंट ईयर आउटस्टैंडिंग और लास्ट ईयर प्री रिसीव, दो ही पॉसिबल, करंट करंट ये आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हो सकता है। आपका भाड़ुत्री आपको डिले करके रेंट दे सकता है। सर वो 300 का कुछ नहीं है। 300 लिखा ना, ये क्या 300 इज लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग, ईयर वाइज दिया है ना, तो हम लोग माइनस तो नहीं करते हैं रेंट में वैसे भी इनकम साइड पे, याद आया, ईयर वाइज दिया है ना, तो हम लोग इनकम साइड पे माइनस नहीं करते हैं, अलग से दिया था इसलिए मैंने लास्ट ईयर एसेट दिखा दिया। और करंट ईयर का रेंट वाज 600 बट आउटर कॉलम फॉर 600, सो 4000 वाज आउटस्टैंडिंग, दैट्स व्हाट आई अज्यूम, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 07, ओके। Okay, after that rent we have government grants. Received government grants are I think 4000 rupees. और income side पे भी income या revenue ही होता है government grant. I think that is 4000. So no two thoughts about that. Nothing is capitalized. लफड़ा नहीं है वहाँ पे. तो जाएगा बैलेंस शीट में government grants का कोई stuff. रक्षित हरिया नहीं जाएगा. समझ रहे हैं? Now that part is clear. So now I think we have covered the entire receipt and payment account. उसका स्टोरी खत्म हो गया. अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे फोकस करो और कुछ देखो ऐसे आइटम है जो हमने नहीं लिखा है, नहीं चेक किया अभी तक। टेंट हायर, या टेंट हायर दिख रहा है मेरे को एक्सपेंस साइड पे, टेंट हायर। अब ये टेंट हायर पेमेंट में नहीं था लेकिन एक्सपेंस में दिख रहा है, मतलब एक्सपेंस में टू टेंट हायर ऐसे तो नील था, मतलब पेमेंट नील था लेकिन आउटर कॉलम 400 हो गया, क्यों? लास्ट ईयर पे किया होगा, लास्ट ईयर प्रीपेड। Either it can be last year prepaid or it can be current year outstanding. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। Current year outstanding याद है, करते थे पूरा का पूरा outstanding, entire amount of outstanding interest, entire Audit amount of fees. outstanding audit fees, ऊपर कुछ नहीं और डायरेक्टली दिखा दो to outstanding expense. Is that clear? So again you can assume it as last year's prepaid, okay, but better assumption I'll advise it is current year outstanding. So current year outstanding tent hire it is 400. वो अज्यूम किया तो रॉन्ग नहीं है, टेंशन मत लो, आपको पता होना चाहिए वो अमाउंट कैसे आया, ओके, थ्योरी है, assumptions are possible, either ways it is correct. अगर लास्ट ईयर प्रीपेड लिखा होता तो मैं लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट में दिखा देता, ठीक है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग दिखा रहा हूं तो मैं कहां दिखाऊंगा इसको, करंट ईयर लाइबिलिटी में आई विल शो इट, राइट, करंट ईयर लाइबिलिटी में आई विल शो इट 400, अंडरस्टूड, करंट ईयर लाइबिलिटी साइड 400 रुपीज। अच्छा और कुछ है किया, डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग बाकी है, प्रिंटिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, सरप्लस बाकी है, इंटरेस्ट हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, रेंट हो गया, ग्रांट हो गया, तो आई थिंक टू आइटम्स आर लेफ्ट आउट, depreciation on building and surplus. So let's move to the assets now. Let's cover up the fixed assets. सबसे पहला बिल्डिंग को पकड़ो, लास्ट ईयर कितने की थी बिल्डिंग, लास्ट ईयर बिल्डिंग कितने की थी, 30,000। तो लास्ट ईयर का तो आउटर कॉलम वैल्यू होगा, ऑब्वियसली लास्ट ईयर पे कोई एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है 30,000, बट यही फिक्स्ड एसेट जब करंट ईयर में आएगा 30,000, सो विल यू राइट इट एज 30,000 आउटर कॉलम, नो, आई थिंक देयर इज सम डेप्री ऑन बिल्डिंग, there is no sale, there is no purchase, otherwise you would have found it out on the income and expenditure side, right? So there is no sale, there is no purchase, so क्या करने का अभी, डेप्री करना है इस पे, तो लेस डेप्री 2000, so outer column it is 28,000, इसका इफेक्ट अपने को एक्सपेंस में दिखाई दे रहा है 2000, सर डेप्रिसिएशन 1500 है, 1500, इसका इफेक्ट अपने को एक्सपेंडिचर में दिख रहा है वो 1500, अंडरस्टूड। ऑलराइट, नेक्स्ट बिल्डिंग हो गया, डेप्री भी हो गया, चलो बुक्स आई थिंक वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, लास्ट ईयर का करंट ईयर ऑफ परचेज करके दिखा दिया है, फर्नीचर नहीं लिखा तो लिख दो, आई थिंक लास्ट ईयर में लिख दो पहले फर्नीचर, फर्नीचर लास्ट ईयर कितने का था, 8,000, टेल मी वाज देयर एनी सेल, परचेज और एनी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे कुछ सेल, कुछ परचेज, कुछ डेप्रिसिएशन, कुछ भी नहीं था, वैसे के वैसे भेज दो उसको, आउटर कॉलम में धकेल दो उसको। फिर इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स भी लास्ट ईयर लिख दो, एसेट में आई एम राइटिंग ऑन टॉप, इन्वेस्टमेंट्स लास्ट ईयर एसेट्स में था ना 20,000 इन द लास्ट ईयर एसेट, राइट, ब्रिंग इट डाउन,
investment, is there any change in investment, any purchase of investment or in return of investment? कुछ नहीं है. Sale of investment. रेंट वाला पार्ट वापस समझाओ. इसका वाला रेंट वाला है. टेंट वाला, टेंट हायर वाला. रेंट RENT. रेंट वाला I'll explain one second. इन्वेस्टमेंट्स हो गया. लास्ट ईयर एसेट, करंट ईयर एसेट. लायबिलिटीज देख लो जरा, चेक किया है हमने, देख लो. 100 एडवर्टाइजमेंट आउटस्टैंडिंग था, लिख दिया हमने लास्ट ईयर लायबिलिटी. कहाँ गया? नहीं लिखा. अच्छा नहीं लिखा, लिखो. आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट लास्ट ईयर वाज 100 रुपीज. ओके, जो हमने एडवर्टाइजमेंट से माइनस करके दिखाया यहाँ पे. एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी व 200, ये भी हमने लास्ट ईयर लायबिलिटी दिखाया और सैलरी में से माइनस कर दिया. So I think we have taken care of all the items. Can calculate. पहले तो कैपिटल फंड ढूंढो ओपनिंग बैलेंस शीट में से. ओपनिंग बैलेंस शीट में से कैपिटल फंड टोटल कितना आ रहा है? 74,700 टोटल. हाँ नहीं 84,700 हाँ सॉरी 84,700. 84,700 is the total. check कर लो. And what is your capital fund? 84,400 84,400. bring it down to this year capital fund 84,400 plus surplus. ये बोल मत जाना, लास्ट आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिख रहा है surplus. ना था surplus 10,000. that was a surplus. this is 94,400 and this should tally now. 98,200. 98,200. तो ध्यान से देख लो. और तुम्हारा रेंट का डाउट. रेंट देखो, रेंट वापस देखो सब लोग 1 मिनट. किसको डाउट है तो 2016 का भी था और 2017 का भी रिसीव किया, राइट? 300 and 600. तो 2016 का 300 अभी मिलने का मतलब क्या हुआ? वो लास्ट ईयर रिसीवेबल होगा. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट अंडर लास्ट ईयर एसेट. आउटस्टैंडिंग रेंट 300. कैन यू सी दैट? ये इनकम में से माइनस नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि अलग अलग दिया है. तो अभी इनकम साइड मैंने क्या किया होगा? बाय रेंट 600 खाली करंट ईयर का दिखाया होगा क्योंकि रिसीव किया. और आउटर कॉलम दिख रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर देख के 4,600. तो ये 600 का 4,600 कैसे बना? might have added 4,000. now why do you add anything to income? either it can be outstanding of this year or it can be pre-received of last year. so I'm assuming that it is outstanding rent of this year मिलना बाकी है. You can assume pre-received of last year, तो last year के liability में जाएगा. I'm assuming outstanding rent of this year 4,000, तो current year करेगा गया. current year नहीं लिखा क्या मैंने current year में? अरे current year में लिखना बाकी है. current year में लिखना बाकी है. outstanding rent 4,000, current year में 4,000 ये आएगा. I think that was your doubt. That's why you asked. current year outstanding rent 4,000. नहीं तो टैली नहीं होगा आपका बैलेंस शीट. चेक करो दोनों साइड सेम टोटल आना चाहिए. 98,200. check it. Though both the sides of balance sheet total should be same. Outstanding rent current year is 4,000. don't forget to write that. okay, follow. any doubts? tell me. सर yeah, ये जो लास्ट ईयर का रेंट और वो सब मिला है तो उसका करंट ईयर में कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में? नहीं होगा क्योंकि ईयर वाइज था ना. अगर टोटल होता तो हम लोग माइनस भी करते, जैसे एडवर्टाइजमेंट और सैलरी में किया हमने माइनस लास्ट ईयर का यहाँ पर. हाँ क्योंकि वो मिलावटी था, सब साथ में पे किया था, इसके लिए ईयर वाइज दिया तो हम लास्ट ईयर का कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है उसमें. हाँ सर आपके करंट ईयर बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1000. हाँ वो नहीं लिखा है ना. हाँ देख तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं लिखा है करंट ईयर में. ये वाला आउटस्टैंडिंग मैंने इनकम एक्सपेंडिचर बनाया एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग के लिए. नहीं यहाँ पे इफेक्ट देना भूल गया. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1000. और कुछ तो बाकी नहीं है, देख लो करंट ईयर का. आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग टेंट हायर लिखा बस. ओके, टैली नहीं होगा, बैलेंस शीट टैली नहीं होगा. अपने आप आपको पता चलेगा कुछ मिस्टेक है तो इसका कोई सेट स्टेप्स नहीं है. 2 एडजस्टमेंट, 2 इफेक्ट, 1 इफेक्ट. दिस इज प्योरली लॉजिकल एंड दिस इज हाउ यू नीड टू लर्न. एक्चुअल बिजनेस में ऐसे ही होने वाला है. कोई डेटा किधर का कुछ मिसिंग है तो पता होना चाहिए कौन सा डेटा किधर है किधर नहीं है. उसके हिसाब से यू शुड गिव द इफेक्ट्स.
हाउ टू कंपेयर, यू गॉट इट. पेमेंट को एक्सपेंस, इनकम को रिसीट, कम ज्यादा है. इंफॉर्मेशन दी है तो उस पर फोकस करना, नहीं दिए तो अपने अजम्पशन के हिसाब से यू कैन राइट. ओके, ये ऐसे वाले सम का चांसेस कितना है आने का? गुड चांसेस. फाउंडेशन में ऐसा आता है. ओके, नहीं सीरियसली आई एम टेलिंग इट, आई एम नॉट जोकिंग. फाउंडेशन में एनपीओ में ऐसे ही पूछते हैं आपको कंसेप्ट से क्लियर करने के लिए. ओके, तो गुड चांस, आगे भी मिलेंगे ऐसे सम्स. सॉरी, ये 5 मार्क्स की 10 मार्क्स? This can come for 10 marks. This can come for 10 marks. Okay. करंट 5 marks नहीं आता. हाँ. करंट ईयर बैलेंस शीट जूम करो. करंट ईयर बैलेंस शीट 5 मार्क का बहुत कम चांस है. फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ में छोटे प्रॉब्लम आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाले जो मैंने कराए हैं. बट इट शुड बी 10 mark और 15 marks. रिसेंट पेपर में 15 मार्क का पूछा था, तो थोड़ा इजी था. उससे लास्ट पेपर मतलब 2018 सॉरी मई 2019 के अटेम्प्ट में खतरनाक एनपीओ. ऑल दैट आल्सो दैट वाज ऑल बेस्ड ऑन दिस. सम नंबर 28 ले लो सब लोग. सम नंबर 28, प्रॉब्लम नंबर 28. रिवाइज करना इसको घर पे जाके वापस चेक करना पूरा. अच्छा, अजम्पशंस लिख दो इसका. अजम्पशंस आर नॉट नेसेसरी एज सच इन दिस. ओके, डोनेशन सब्सक्रिप्शन उसके लिए जरूरत पड़ता है. डोनेशन लाइफ मेंबरशिप फीस इसमें भी आप लिख सकते हो, ऑप्शनल है. यू कैन राइट द अजम्पशन, राइट डाउन assumption in this problem. It is assumed that rent was outstanding for current year. It was assumed that rent is outstanding for current year. It is assumed that rent is outstanding for current year, comma, interest was outstanding of last year. Interest was outstanding of last year, comma, subscription outstanding for this year. Subscription outstanding for this year, comma, tent hire outstanding for this year. Tent hire outstanding for this year. That's it. Okay, rent outstanding for this year, interest outstanding for last year, subscription outstanding for this year, tent hire outstanding for this year. तरीका समझ में आया? दिमाग काम करेगा आपका, टेंशन मत लो. तरीका समझा कैसे करना है? असम्पशन समझा, 2 पॉसिबिलिटीज थे, प्लस के 2 थे, माइनस के 2 थे. तो अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो आप कुछ भी अज्यूम करो, इट्स नॉट रॉन्ग. ओके, आपके आंसर थोड़े चेंज हो जाएंगे बट दैट्स फाइन. वैसे क्वेश्चन में होने के चांस है, इसके लिए फिर वो सपोर्टिव assumption you can write, not an issue. Okay? Answers will change, that is not an issue. इधर 12th के जैसा नहीं है कि सेट पैटर्न सेट की रहेगा. Okay? Now 28th sum number 28. Videos on कर लो, come on. Turn on the videos, keep the videos on. Sum number 28 ले लो. 28 is again a normal problem. I want you all to try this sum on your own. I'll just discuss it. Payment side check करते जाओ. Check the payment side. You have cricket tournament expenses. Check. Do you have any cricket fund, tournament fund, or anything like that? I don't think so. Receipts from cricket tournament दिया है, बराबर है? So receipt will go to income. Payment will go to expense. Printing and stationery is expense. Salaries and honorarium are expense. Repairs to building are expense. Newspaper and periodicals are expense. Advertisement is expense. Insurance is expense. Investments are assets. Closing cash bank is current year asset. Opening cash bank is last year asset. Subscription एक साथ दे दिया. क्या करना है? एक साथ दे दिया. Where do you write subscription? Income. सब adjustments करेंगे और income में डालेंगे. Entrance fees के बारे में पढ़ो, कुछ दिया गया. Entrance fees. Information about entrance fees. Check. Received in advance 300. वो तो ठीक है, रिसीव इन एडवांस, बट इंफॉर्मेशन है कुछ कैपिटलाइज करना है कि रेवेन्यू कैपिटलाइज का कुछ नहीं दिया, तो क्या करोगे? एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, एडमिशन एंट्रेंस फीस कैपिटल, एंड राइट योर assumption. It assumed that entrance fees is a capital receipt, hence added to capital fund. Okay. उसके बाद receipts from cricket tournament are income. Interest on bank account is also income.
ये इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट पेड नहीं है, रिसीव्ड है। अब कुछ सेविंग वेविंग रहेगा खाता, उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट्स योर रिसीट। ओके, नाउ इनकम। नाउ लास्ट ईयर बैलेंस शीट देख लो, लास्ट ईयर बैलेंस शीट, इफ यू सी द लास्ट ईयर बैलेंस शीट, बिल्डिंग लास्ट ईयर एसेट किधर जाएगा? This year asset. Then sale, purchase, depreciation, if there is any. Furniture, last year asset, this year asset. Entrance fee receivable, Less from this year. less from entrance fees and assets of last year. Assets of last year तो दिया है, तो खाली less from entrance fees. Subscription, हाँ, हम लोग लेस क्यों करेंगे, वो तो कैपिटलाइज हो गया है ना। तो क्या हो गया? कैपिटलाइज हो गया तो तो कैपिटल तो लेस करने के बाद कैपिटलाइज करेंगे। नहीं, वो है ना कैपिटल फंड में से तुम जब लिखोगे ना प्लस एंट्रेंस फीस, हाँ नीचे ही इन द पर्टिकुलर साइड विल हैव टू शो दीस टू एडजस्टमेंट्स, लास्ट ईयर का रिसीवेबल और करंट ईयर का प्री रिसीट। लास्ट ईयर का रिसीवेबल और करंट ईयर का प्री रिसीट, वो दोनों दिखा देने, और फिर आउटर कॉलम में लिखना। मतलब एंट्रेंस फी कैसे लिखोगे? एंट्रेंस फीस आप लिखोगे 4000 इनर कॉलम में नहीं, ब्रैकेट एंट्रेंस फीस पर्टिकुलर में ब्रैकेट में 4000 minus receivable last year 200, so 3800 minus received in advance current year 300, so कितना होता है? 3500. So inner column you will net add 3500 to your capital fund, that. तो सर आउटर कॉलम में 3500 आएगा ना? हाँ, मतलब मेन जो कैपिटल फंड में ऐड हो रहा है वो 3500, वो इनर कॉलम में लिखना, फिर कैपिटल फंड में ऐड करके फाइनल अमाउंट जाता है ना कैपिटल फंड का, और फिर वही लायबिलिटीज में नीचे भी आएगा। वही लायबिलिटीज में नीचे भी आएगा रिसीव्ड इन एडवांस, वही लायबिलिटी में नीचे भी आएगा रिसीव्ड इन एडवांस। और लास्ट ईयर का रिसीवेबल लास्ट ईयर एसेट, लास्ट ईयर का रिसीवेबल लास्ट ईयर एसेट। ओके, क्लियर विद दैट? नाउ एंट्रेंस फीस रिसीवेबल दो एडजस्टमेंट है, लेकिन कैपिटलाइज करके उसी के नीचे करके दिखाना फिर इनर कॉलम में। आई शो इट टू यू। सब्सक्रिप्शन फी रिसीवेबल, क्या करना है? सब्सक्रिप्शन फी रिसीवेबल लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, एंड लास्ट ईयर एसेट तो दिया हुआ है। स्पोर्ट्स मटेरियल एंड इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स मटेरियल एंड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स आर ऑलवेज व्हाट? एसेट। No two thoughts. Last year, current year, sale, purchase, depre. Cash in hand, opening balance, bank opening balance, capital fund balancing figure. Last year का closing because this year का opening. Outstanding expense, ध्यान से देखो, outstanding salaries of last year, क्या करने का? लेस Less from सैलरी करना है कि नहीं करना है? करना है सर। ठीक है, तो करना पड़ेगा। प्रिंटिंग आउटस्टैंडिंग क्या करोगे? लेस फ्रॉम प्रिंटिंग करना है कि नहीं करना है? करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वापस टपका, कैसे करना है? Did you add it to capital fund? No. Show it separately. And what are you supposed to do with that income and expenditure? एक ही adjustment होगा उसमें. What is that? surplus. Your surplus or deficit. Surplus you add, deficit you subtract from the current year's income and expenditure account. फिर आ जाओ नीचे करंट ईयर के एडजस्टमेंट में। सब्सक्रिप्शन ऑफ द अमाउंट 800 were receivable as on 31st March. करंट ईयर का रिसीवेबल है, क्या करना है? सब्सक्रिप्शन एंड एसेट्स। सब्सक्रिप्शन 200 एंड एंट्रेंस फीस 300 were received in advance. कौन सा प्री रिसीव्ड है? करंट ईयर की लास्ट ईयर? करंट ईयर का प्री रिसीव्ड इफेक्ट क्या होगा? Less from subscription and less from entrance fee on the capitalized part and liabilities of current year. Outstanding expenses, कौन से outstanding expenses है? कौन से outstanding expenses? Current year. Salaries add, insurance can never be outstanding, okay? But ये theory में है सर। Salaries and honorarium 100, insurance 50, cricket tournament expense 250, तीनों add and liability. खत्म? Finish it off. Only current year balance sheet and income and expenditure. Time yourself 10 minutes. Sir, 12:50. बोलो। एडजस्टमेंट में जो फर्स्ट दिया ना सब्सक्रिप्शन, ये जो रिसीवेबल है वो करंट ईयर का रिसीवेबल है ना? हाँ, नीचे जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो सब करंट ईयर के हो गई ना। ऊपर लास्ट ईयर का बैलेंस शीट दे दिया है, तो लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन आ चुकी है ऊपर। जब भी आपको लास्ट ईयर बैलेंस शीट देंगे तो नीचे वाली सब इन्फो करंट ईयर की, अनलेस एंड अनटिल कुछ स्पेसिफाई करके दिया। और इन जनरल भी याद रखना, करंट ईयर का एडजस्टमेंट है ना तो कुछ देंगे नहीं। लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट है तो दे शुड स्पेसिफाई ये लास्ट ईयर का है। कुछ इन्फो नहीं दिया तो ऑल एडजस्टमेंट्स बिलोंग टू दिस ईयर। ओके, कुछ इन्फो नहीं है तो ऑल एडजस्टमेंट्स बिलोंग टू दिस ईयर, सिंपल एज दैट। एंट्रेंस फीस अगर किसी को डाउट है तो देख लेना। आई एम शोइंग यू द एंट्रेंस फी पार्ट ऑन द लायबिलिटी साइड। दिस इज योर current year balance sheet liability part. And over here you will write capital fund plus entrance fees
इसमें ऐसे दिखा देना 4000 minus 300 minus 200. What is this 300? Pre-receipt of current year. What is this 200? Outstanding of last year. Outer column 3005. For assumption लिखना, it is assumed that entrance fee is a capital receipt. सर Hence capital. Sorry, बोलो. अब ये जो लोग ने माइनस किया 300 और 200, वो अगर इनकम साइड में होता तो हम लोग करते ना, पर बैलेंस शीट में तो अब तक का सब लायबिलिटीज आता है. नहीं, देखो कैपिटलाइज करने का रीजन क्या है. इट इज नॉट अ रेगुलर इनकम. अभी ये रिसीव इन एडवांस भले ही दिया है तो 2-3 साल आया होगा. नॉट अ रेगुलर रिकरिंग नेचर इनकम. दैट्स व्हाई वी आर शोइंग इट ऑन द लायबिलिटी पार्ट, एडिंग इट टू कैपिटल पार्ट. क्योंकि वो रिकरिंग नहीं है. रिकरिंग नहीं है तो कंसिस्टेंसी इफेक्ट हो जाएगी, मैचिंग इफेक्ट हो जाएगा, कंपैरिजन इफेक्ट हो जाएगा. तो रिकरिंग नेचर का होता है वो हर साल मिलने वाला होता है, वो आप इनकम में दिखाते हो. बट रिकरिंग नेचर का नहीं है तो आप कैपिटल फंड में ऐड कर दो. एडजस्टमेंट तो जो कैपिटल फंड वाले करते हो उसमें फर्क नहीं पड़ता है. कैपिटलाइज आइटम में भी हो सकता है, आने का चांस कम होता है बट हो सकता है. जैसे कि यहाँ पे जानबूझ के किया हुआ है कि आ सकता है, कैपिटलाइज पार्ट में भी एडजस्टमेंट आ सकता है. हाँ. आने का चांस कम है बट इट कैन कम. जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फीस हुआ. लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करते हो हमेशा, ओके. और उसमें रिसीवेबल आ गया तो उधर ही कैपिटलाइज पोर्शन में ऐड करना है रिसीवेबल इनकम में और एसेट्स में दिखा देने का रिसीवेबल लाइफ मेंबरशिप फीस, ओके. तो ये हमारा अजम्पशन है. प्रैक्टिकली वी नो वेदर इट इज रेवेन्यू और कैपिटल, हर साल की लंप सम की, इरेगुलर. हियर वी डोंट नो. दैट्स व्हाई दीस थियोरेटिकल assumptions you have. Donation, entrance fees. Donation is income, entrance fees is capital, admission fees capitalized. Okay? Assume that entrance fees is a capital receipt, hence added to capital fund. वैसे ही आई थिंक ऊपर वाले सम में आज एक किया था ना हमने डोनेशन का. 24th सम, या 24th सम में भी लिख देना. इट इज अज्यूम दैट डोनेशन इज अ रेवेन्यू रिसीट, hence credited to income and expenditure. Donation is a revenue receipt, hence credited to income and expenditure account. All this. But
लास्ट ईयर का रिसीवेबल लेस ही होगा ना? हाँ ये है ना, ये देखो स्क्रीन पे ही। सब्सक्रिप्शन का बोल रहा है। हाँ सब्सक्रिप्शन भी लेस ही होगा ना। क्यों होगा लेस समझा? क्योंकि लास्ट ईयर का इस साल में पड़ा हुआ है रिसीव में, हाँ ईयर वाइज दिया तो नहीं करने का। सर और Yes. ये एंट्रेंस फीस रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी में भी आएगा ना? लायबिलिटी में भी नीचे? आएगा ना, नीचे यहाँ पर ही आएगा। हाँ एंट्रेंस फीस रिसीव्ड इन एडवांस 300 और 200 लास्ट ईयर एसेट में तो दिख रहा है ऑलरेडी। तीर्थ खारा इम्प्रूव द प्रेजेंटेशन। हाँ टेस्ट में तेरा ऐसी हैंड राइटिंग में, तेरा होमवर्क में भी मार्क्स कटेगा हैंड राइटिंग का। खतरनाक हैंड राइटिंग है तेरा। हाँ 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 वीडियो ऑन कर। वो नाम भी देखने का जरूरत नहीं पड़ता, तीर्थ का पेपर हवा में उड़ता है उसका हैंड राइटिंग, थोड़ा पेज के बाहर भी उड़ जाएगा ऐसा। अच्छा है ना आपके लिए सर? हाँ बेस्ट प्रेजेंटेशन इज ऑफ यशवी छेड़ा, देन धरा। धरा का थोड़ा कैंसलेशन होता है, अदरवाइज प्रेजेंटेशन वाइज they are the best papers you can go through. Janisha, handwriting, presentation, start to end. आर्यन शाह का प्रेजेंटेशन अच्छा है। ये अपना जेनिल का है प्रेजेंटेशन। Just refer working notes systematically, everything you can show and disclose. Increase the speed. नहीं हो रहा है। हैंड राइटिंग ऑलमोस्ट सबका अच्छा ही है, थोड़ा कैंसलेशन होता है ऊपर नीचे, और वर्किंग नोट्स में थोड़ी कंजूसी करते हो कोई कोई। वर्किंग नोट्स में कंजूसी मत करना, पूरा लिखना परफेक्टली। एक हफ्ता है अभी फुल पोर्शन अभी तक का टेस्ट के लिए, प्रिपेयर करो बराबर से, थोड़ा 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 करो, डाउट से तो क्लियर करते जाओ। मॉड्यूल बाइबल इज मॉड्यूल, मॉड्यूल का वापस गो थ्रू करना, इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सब, बाद में थियरी का इम्पोर्टेंट सम्स। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किधर है? अरे इलस्ट्रेशन के नीचे है। नहीं है, देखा मैंने। किसको नहीं मिला, कौन है ये? रियल भी नहीं मिला। अरे सिर्फ इलस्ट्रेशन ही है। illustration are solved examples right with the theory। फिर एक वो लाइट ब्राउन कलर का पोर्शन आता है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव और बाद में थोड़ा थियरी क्वेश्चंस होता है, फिर सम्स होते हैं नीचे। उसमें खाली क्वेश्चन 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 है, फिर नीचे सॉल्यूशंस दिया है उसका। नहीं देखना पड़ेगा।
चैप्टर के एंड में दिया है, हर चैप्टर के एंड में दिया है। चैप्टर के एंड में तो एमसीक्यू दिया है। तो भाई कौन सा मॉड्यूल रेफर कर रहा है? एमसीक्यू के नीचे है प्रैक्टिकल वाला। हर एक चैप्टर में 3 4 4 5 क्वेश्चंस हैं, तो खाली क्वेश्चंस है, उसके नीचे बाद में एक साथ सॉल्यूशंस है पांचों का। मैंने आपको जो लिंक भेजा था ना पीडीएफ का, उसमें से देखो, वापस भेजता हूँ चाहिए तो ग्रुप पे। ज्यादा नहीं है, हर एक प्रॉब्लम, हर एक चैप्टर में 3 से 4 4 क्वेश्चंस है, 3 से 4 4 4 5। उसके भी सॉल्यूशन सब नीचे पांचों मिला के दिए। मिला ना सबको? हेलो, कि किसी को नहीं मिला है ये? बाकी लोग को दिखा ना चैप्टर के एंड में? हेलो, चेक नहीं किया? चेक नहीं किया? अभी तक क्या कर रहे थे? मॉड्यूल रेफर करने को बोला तो। रेफर द मॉड्यूल गाइस, क्वेश्चंस मत छोड़ना मॉड्यूल के। ये टेस्ट के लिए पूरा छान मारो, ऑल इलस्ट्रेशंस, ऑल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। उसका कुछ नाम अलग होगा शायद, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं होगा, का नाम होगा कुछ प्रैक्टिस ही है। सर सरप्लस क्या आ रहा है? टैली 1 2 3 3 3 330 12330, प्लीज चेक। 12330 लिंक अमाउंट की सरप्लस surplus is 12330 ना? Surplus is 12330, please check. लिंक शेयर किया है, इसमें सब मॉड्यूल का पूरा मॉड्यूल का लिंक है, अकाउंट्स का चैप्टर को पीडीएफ फाइल्स आपको मिल जाएंगे, and just download it, go through it. सर ये रिपेयर्स को बिल्डिंग में ऐड करने का था ना? नहीं भैया, नहीं नहीं, रिपेयर इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। खरीदते वक्त बनाते वक्त हुआ है तो ऐड, नहीं तो रेवेन्यू एक्सपेंस। एक्सपेंस मेरा कम आ रहा था 500। ये मिस्टेक होती है, याद रखना। हाँ गाइस, रिपेयर्स को कुछ ऐड मत कर देना एसेट में। रिपेयर्स आर अलग एक्सपेंस, खरीदने पे हुआ है तो हम ऐड करते हैं, अदरवाइज एक्सपेंस। सर मुझे 50 का डिफरेंस आ रहा है, पता नहीं। 50? हाँ देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिख रहा है, ऐसा ब्राउन कलर में दिखेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ओके, हर चैप्टर के नीचे मिलेंगे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के एंड में आपका चैप्टर खत्म होगा। 50 रुपए का किसको डिफरेंस आ रहा है? 50 रुपए का आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस लायबिलिटी 60 का कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, देख लो, इसलिए कैलकुलेशन एरर। बारिश गिर रहा है क्या उधर? इधर तो जोर से चालू हो गया, तो पूरा अंधेरा हो गया है। इधर तो जोरदार चालू है आधे घंटे से। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज 860 बराबर लिखा है। सर मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 200 का डिफरेंस आ रहा है। 200 का डिफरेंस? रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन ऐड किया? हाँ सर। और वो प्री रिसीव्ड माइनस किया 200? हाँ वो भी किया। सर सब्सक्रिप्शन का फाइनल अमाउंट 17,800 है। सब्सक्रिप्शन कितना आ रहा है फाइनल? हाँ भाई 17,800 है। तो बैलेंस शीट कितने में टोटल हो रहा है? 730 17,800 ना? 70030 टैलीज ऑन व्हाट? 70030? यस Tally is on एसेट बराबर है, मेरा लायबिलिटी 60 तो आ रहा है। एसेट बराबर है, लायबिलिटी में गड़बड़ है, कैलकुलेशन। पर अमाउंट बोलो ना, देख लो ना अमाउंट्स। किसी का, एनीवन किसका हो गया सम टैली? 33,500 Yeah. 200 You told that insurance is prepaid, right?
इंश्योरेंस यूजुअली इज प्रीपेड, यहाँ पे प्रॉब्लम में आउटस्टैंडिंग है ना, तो हमें आउटस्टैंडिंग के जैसा करना पड़ेगा, ऐड टू इंश्योरेंस एंड लायबिलिटी। प्रैक्टिकली इट इज नेवर आउटस्टैंडिंग, इट इज ऑलवेज प्रीपेड, बट थियरी में है तो करो, दिया है तो ऐड टू इंश्योरेंस एंड लायबिलिटी, दिया है तो ऐड टू इंश्योरेंस एंड लायबिलिटी। ऐड टू इंश्योरेंस एंड लायबिलिटी। झाला मिला? 60 रुपए वाला कौन था? 60 रुपीज? नहीं अभी भी नहीं मिला? 200 रुपए वाले को मिला? 200? नहीं सर, सर अरे! किसी को बोलो ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट बोल रहे हो। बोलो जरा, कौन बोल रहा था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस का बोलो जरा अमाउंट। 560, 16710, फिर 1300 है, 500, 470, 300, 450, and then और इनकम साइड 17800, 14520, बस हो गया सर, मिल गया इसका हाँ। रिसीट्स फ्रॉम क्रिकेट का अमाउंट रॉन्ग कॉपी। ओके, 60 रुपीज वाले को मिला? हाँ ओके, सबको क्रिकेट मिला? टूर्नामेंट का एक भूल ही गया, यार तुम लोग 50 कम हुआ है अमाउंट भूल जाओगे तो कैसे चलेगा यार। कम ऑन बी अलर्ट, टाइम भी ज्यादा हो गया तुमको, 15 मिनट से प्लस ले लिया है, टाइम पे कंसंट्रेट करो। चलो हो गया सबका? एनीवन स्टिल डूइंग? एनी डाउट? किसी का नहीं हो रहा है टैली? बताओ। अनंत गीता अंधेरे में बैठा है। चलो नाउ मॉड्यूल का सम करना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ हिंट नहीं दूंगा, पूरा खुद से करना है। सम नंबर 34 और टाइम देखना है, इट्स 110 या मैक्स 115 तक करना है। दिस इज अ प्रॉपर 10 मार्क प्रॉब्लम, मॉड्यूल का है तो सेम टू सेम भी आने का चांस है आपको पेपर में। कभी कभी वो लोग इतना भी केयर नहीं करते कि सेम डाल रहे हैं, डिक्टो डाल सकते हैं। कौन सा सम बोला? 34 34 खुद का दिमाग लगाना है। लास्ट सम है ना सर? नहीं एक और, एक छोटू सा इसके बाद। सर प्लीज 34 लाख। ग्रुप पे तो आपने लिखा था टिल 115। हाँ सर। हाय सर मस्ती कर रहे। सर मस्ती कर रहा है? सर मस्ती नहीं कर रहे हो, तीर्थ मस्ती कर रहा है। चलो सम नंबर 34 फटाफट। 34th सम। सब डेटा दिया है, दिमाग लगाओ। दोनों बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा बिकॉज कैपिटल फंड इज मिसिंग। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना, मेरे से पूछने से पहले या पूछने से पहले ट्राई करो, दिमाग लगाओ, यूज योर ब्रेन विल आंसर। फिर भी नहीं आ रहा है फिर पूछना। इंटरप्रेट करो प्रॉब्लम के बाद भी जो इन्फॉर्मेशन दिया है। इट्स इजी, नॉट डिफिकल्ट, मैनेजेबल इट इज। सर इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाना है ना? हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बोथ द बैलेंस। हेलो बोलो सुहानी। मैं थोड़ा जरा लेक्चर में हूँ अभी, मैं तुमको फोन करूँ आधे घंटे में? कुछ है तुम्हारा? उसके बाद नहीं है ना? आधे घंटे में करता हूँ, ठीक है? पीछे दिया है ना तीनों बनाने को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, ओपनिंग क्लोजिंग, ऑल द 3 थिंग्स।
मेरी इंटरेस्ट अक्रूड जेरॉन क्या है? इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एफडी, देयर ऑन मतलब एफडी का इंटरेस्ट अक्रूड। सो और इसका प्रीपेड एक्सपेंसेस जो एडजस्टमेंट में उसका क्या बनेगा? सन्ड्री एक्सपेंस में करना पड़ेगा, और कुछ है ही नहीं उधर, सन्ड्री एक्सपेंस में करना पड़ेगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी दिया है। दिया है क्या? वो इनकम है, मिसलेनियस इनकम है, इनकम एक्सपेंस सन्ड्री है, सन्ड्री एक्सपेंस में ही करना पड़ेगा। एक समय हमने टेलीफोन किया था ना, सेम। So the interest accrued thereon is on FD only or FD thereon मतलब FD का accrued। so it will be added to FD only, no? हाँ, इन द बैलेंस शीट दो इफेक्ट होगा ना, दोनों का दो इफेक्ट। अलग दिखाओगे तो भी चलेगा बैलेंस शीट सर, एसेट। पर उसका तो 20,000 का 10% 2,000 हो रहा है और वो दिया भी है, तो भी 500 ऐड करने का। तो दिमाग लगाओ, उसका मतलब क्या हुआ? 500 लास्ट ईयर, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। यूज योर इमेजिनेशन। इंटरेस्ट का बता ना सर। इंटरेस्ट ऑन एफडी वो 500 वाला, क्योंकि 4,000 का इंटरेस्ट है ही उसका। 2000 इंटरेस्ट है ही, अभी लास्ट ईयर का भी रिसीवेबल था 500 और करंट ईयर का भी रिसीवेबल है 500। तक नील हो जाएगा, मतलब माइनस प्लस करके नहीं होगा 2000।
तो मतलब लास्ट ईयर का 500 ये साल मिला, ये साल का 1500 मिला और नेक्स्ट ईयर का 500 आउटस्टैंडिंग। मतलब वो 500 दोनों ईयर की बैलेंस शीट में हाँ रिसीवेबल में तो एसेट दिखेगा साइड ना? दिखेगा। यस, दोनों ईयर का बैलेंस शीट एसेट में दिखेगा 500 एंड प्लस एंड माइनस 500। अच्छा 45595 पे टैली टैली हो रहा है 45595 और सब प्लस डेफिसिट है 2888 डेफिसिट ऑफ हाउ मच 2888 सर या वो इंटरेस्ट का आपने क्या बोला, मतलब वो 20,000 का है, तो उस पे 10% है, तो वो तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। बराबर है, उतना हाँ रिसीव किया है। हाँ, उतना रिसीव ऑलरेडी कर दिया है। हाँ, हाँ, और 2,000। नीचे दिया है इट इज
500 receivable of last year and 500 receivable of this year. अच्छा उतना ही है, तो ऐड हो जाएगा ना, और सब करंट ईयर ऐड और लास्ट ईयर माइनस, लास्ट ईयर का लास्ट ईयर एसेट, करंट ईयर का करंट ईयर एसेट, मतलब लास्ट ईयर का 500 ये साल मिला, हाँ ये साल का 1500 ही मिला, हाँ ये साल का भी 500 आउटस्टैंडिंग हो गया ना, हाँ हाँ 2000 माइनस 500 प्लस 500, और लास्ट ईयर एसेट 500, करंट ईयर एसेट 500. हाँ वो इंटरेस्ट ऑन एफडी में से ही करना है ना 500 का। नहीं नहीं माइनस मत करना एफडी में, हाँ 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 इंटरेस्ट ऑन एफडी में से माइनस और प्लस, यस यस, इनकम साइड बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी 45595 पे टैली हो रहा है, minus 500 plus 500, 45595, tally is on 45595. मिला 45595. सर ये 25595 आ रहा है बैलेंस शीट का टोटल। इतना भयंकर डिफरेंस, 20,000 क्या खा गए हो? एफडी में डाला होगा, एफडी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में 20-20 एफडी आएगा ना यार, इंटरेस्ट लिखा है एफडी को खा गए, ऐसा थोड़ी चलेगा। मतलब वो इंटरेस्ट रिसीवेबल एसेट में होगा ना 1500 और 500। 1500 एसेट में नहीं है, 500 एसेट में रिसीवेबल। अगर इंटरेस्ट का दोनों अमाउंट अलग रहता तो हाँ तो अलग रहने दो ना, अपने को तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस करना है और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करना है। 2000 तो वैसे का वैसे ही रहता। हाँ अर्नड इनकम दिखानी है, अर्नड इनकम 2000 ही होने वाली है, मतलब वो इनर कॉलम में आएगा 2000, आउटर कॉलम में 2000 ही आना चाहिए ना। समझो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग वो 600, तो कितना होएगा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली 600 ही होएगा, क्योंकि टोटल 2000 होना चाहिए ना आउटर कॉलम में अर्नड इनकम। तुमको एफडी पे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो डिसाइड करो, 2000 मिलना चाहिए, 2000 ही मिला है, आइडियली कुछ एडजस्टमेंट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग ने क्या दिया, लास्ट ईयर का रिसीवेबल वाज 500, तो लास्ट ईयर 500 मिलना बाकी था, मतलब लास्ट ईयर तुमको 1500 ही मिला रहेगा, ऐड 500 किया रहेगा, लास्ट ईयर का 500 बाकी था, तो वो ये साल मिला होगा, मतलब ये साल के 2000 में पड़ा हुआ है, तो एक्चुअली ये साल का एफडी का इंटरेस्ट एक्चुअली मिला कितना है, 1500 ही मिला है। वो दोनों अमाउंट सेम ही होगा वैसे, सेम ही होगा, अलग नहीं हो सकता, अलग अलग होगा नहीं, हाँ या एक देगा ना तो अलग हो सकता है, तो अपने को दूसरा सेम करके मिलेगा ही, मतलब एक दिया है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग वो 200, सब्सक्रिप्शन का आउटर अमाउंट रहता था वैसे। हाँ सब्सक्रिप्शन का आउटर अमाउंट वैसा 2000, जैसे वो मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन होता है आउटर अमाउंट में, वैसे ये 2000 होना ही चाहिए आउटर कॉलम वैसा। तो अगर लास्ट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग दिया है तो करंट ईयर का ऐड करके वही मिल जाएगा, लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड दिया है, समझो लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड ये साल ऐड हो जाएगा, तो 2000 में 200 और ऐड हो जाएगा, 2200, लेकिन होना चाहिए कितना 2000, तो करंट ईयर का रिसीव्ड माइनस करना पड़ेगा, करंट ईयर का प्री रिसीव्ड या लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग वो फिर अज्यूम करके कर सकते। करंट ईयर का इनकम में आउटर कॉलम 2000 होना ही चाहिए। मिल रहा है आंसर्स? टाइम हो गया, इतने टाइम में हो जाना चाहिए था एक्चुअली। डेफिसिट आया 2888, डेफिसिट 2888, सर कैपिटल फंड क्या आ रहा है? What is the capital fund? 47,000। 47. Capital fund is 47. Capital fund is 47,000.
नमन का हो गया? उमांगी डन? राधिका, ऋषि, इतवी ठक्कर इज डूइंग, निकिशा का हो गया? निकिशा डूइंग, करो करो फटाफट। करण नकरानी फिनिश्ड? टैलिड? हाँ सर हो गया। बाकी लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाना, होमवर्क सब में भी टाइमिंग रखना। वंदित डन? कृष्णा का हो गया, विधि का हो गया, विधि फिनिश्ड, दारा मेहता फिनिश्ड, तन्वी डन? बढ़िया। तनय सावंत, वर्क हार्ड थोड़ा, ये टेस्ट में तो अच्छा किया है, अभी फुल पोर्शन टेस्ट में बराबर प्रिपेयर करना है। और हर्ष राजे, तुम्हारा स्कोर थोड़ा कम हो रहा है। हर्ष राजे, वर्क हार्ड थोड़ा, ये प्रैक्टिस। चल, बारिश आई तो सबका नेटवर्क जा रहा है अभी। मिल रहे हैं आंसर्स? बैलेंस शीट अपना, सॉरी, डेफिसिट 2888, कैपिटल फंड 47,000, बैलेंस शीट टैलीज ऑन 45595। इंटरेस्ट का पार्ट समझा कि स्टिल कंफ्यूज्ड? इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन का मतलब समझ में आया? सर एक बार लिख के समझाओ ना। देखो, इंटरेस्ट है ना आपको रिसीव्ड है 2000, हाँ और मिलना कितना चाहिए? तो 2000, 20,000 का 10% फॉर फुल ईयर ही लोगे, क्योंकि शुरू से एंड तक था इन्वेस्टमेंट, एफडी, राइट? हाँ तो इस साल का अर्न इनकम 2000, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर आउटर कॉलम 2000 होना चाहिए। तो आइडियल इस पे कुछ एडजस्टमेंट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग ने दिया है, क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर वाज 500 एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर इज आल्सो 500। तो वो लोग ने खाली ये दिया होता ना तो भी हमको ये मिल जाता दूसरा वाला। वो लोग ने क्या दिया था? आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 500, मतलब ये जो 2000 मिला है ना आपको, इसमें 500 लास्ट ईयर का है, उसको माइनस करो, बराबर है ना? हाँ इसके हाँ अंदर ही पड़ा होगा, ईयर वाइज तो दिया नहीं है। तो 2000 में से इफ आई सब्ट्रैक्ट 500, व्हाट डू आई गेट? 1500। हाँ ये करंट ईयर का रिसीव्ड इंटरेस्ट है, लेकिन कितना होना चाहिए टोटल? 2000। अर्नड इनकम इज 2000, टाइम हो गया है, 2000 कमा लिया है। हाँ। तो ये 2000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 500 है और वो दिया ही है। वो दिया ही है, नहीं भी दिया होता तो भी हम यही करते। हाँ ऐसे ही साइकिल चल रही है, नेक्स्ट ईयर भी यही होगा। नेक्स्ट ईयर उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें से 500 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 500 रिसीवेबल था, मिलना बाकी था, बराबर है ना? नेक्स्ट हाँ ईयर उसको समझा। समझो 1800 रुपया मिला है, 1800, 1800 में से 500 माइनस हो जाएगा, 1300 ही हुआ। तो 1300 में 700 ऐड हो जाएगा, 700 वुड बी आउटस्टैंडिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। हाँ समझा। ओके, 1800 मिला है तो। Any doubt in interest or any doubt in any other item of this problem? Tell me. मॉड्यूल का सम था, थोड़ा भी रिस्क नहीं लेने का, परफेक्टली आना चाहिए। चलो, डन 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 ऑल ऑफ यू। लास्ट सम अभी सॉल्व नहीं करना है, होमवर्क है। चलो डिस्कस करता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क ही देने वाला था वैसे भी, ओके, मैं इतना निष्ठुर नहीं हूँ। चलो होमवर्क, सम नंबर कौन सा था? 38, सम नंबर 38, सम नंबर 38, ओके। उसमें एक ही चीज का थोड़ा प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, देख लो। फर्नीचर इज एसेट, 38 sum, all of you, 38, 38, 38, 38, 38. Furniture is asset, salaries are expense, rent is expense, sundry expense, expense, stationery is expense, annual gathering expenses
are expense, insurance is expense, repairs to building. What do you do repairs to building? Repairs to building? Expense. मत कर देना. It's a revenue expense, okay? खरीदने पे हुआ है, बनाने पे हुआ है तो ऐड होता है. अभी नहीं हो रहा है वो. Extension of library building. Extension of library building क्या करोगे? Add to library. Add building asset. Expenses of cultural show. फिलहाल you can show it as expense. फिलहाल you can show it as expense, but there is an adjustment. We'll deal with that. Balance of cash at bank is asset. Opening balance of cash at bank is asset. Tuition fees. It's a school, so tuition fees होगा इसका main income. Okay, tuition fees are income. Term fees are also income. 6 महीने की term fees जो लेते हैं ना, आप भी भरते रहोगे स्कूल पे. तो tuition fees and term fees both are incomes. Tuition and term fees both are income. Okay. यहाँ पे subscription नहीं होगा, obviously fees होगा. Doctor है तो visiting charges होगा, doctor's fees होगा, lawyer है तो fees होगा. यहाँ पे स्कूल की ट्यूशन फीस, टर्म फीस बोथ आर इनकम. गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है. रीड पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 पढ़ो. ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट इज रिसीव्ड फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू पुअर एंड नीडी स्टूडेंट. एक बड़ी सी हिंट है यहाँ पे. वो ग्रांट टाइप, ग्रांट लायबिलिटी में जाना चाहिए कि इनकम में जाना चाहिए? इनकम. लायबिलिटी पर्पस दिया है. पर्पस है ना. अरे बट स्पेसिफिक पर्पस एक्सपेंस का है ना. हाँ, स्पेसिफिक पर्पस एक्सपेंस का है. स्पेसिफिक पर्पस अगर एसेट का होता तो इट वुड हैव बीन लायबिलिटी. स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या क्या पर्पस है उसका? फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू पुअर एंड नीडी स्टूडेंट्स. ये सभी चीजें रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं आपकी. सैलरीज हर साल इनकर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हर साल होगा, प्रोवाइडिंग फ्री एंड एजुकेशन नीडी स्टूडेंट्स. So that's a hint. प्राइस फंड भी तो लायबिलिटी में लिखते थे. Exactly. प्राइस फंड लायबिलिटी में क्यों लिखते थे? क्योंकि प्राइस फंड करके देते थे पहली चीज, और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता था वो हर साल होने का जरूरी नहीं है. इट इज अ स्कूल देन दैट में अपीयर एवरी ईयर. लेकिन फंड दे दिया ना आपको, फंड स्पेसिफाई करके फंड दे दिया, तो फंड मतलब उसका पर्पस स्पेसिफिक है, वो लायबिलिटी में जाएगा, वो नॉन रिकरिंग है, हर साल नहीं होने वाला, इसीलिए उसको फंड बना के ट्रीट किया. सो गवर्नमेंट ग्रांट हम लोग वैसे भी इनकम में डालते थे, और ये एडजस्टमेंट में भी दिया है कि ये सैलरीज है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, कॉस्ट ऑफ पुअर एंड नीडी स्टूडेंट्स है, तो इट इज एन इनकम ओनली. बट अगर ऐसे दिया होता गवर्नमेंट ग्रांट, अगर ऐसे दिया होता गवर्नमेंट ग्रांट इज फॉर मेकिंग अ प्लेग्राउंड फॉर द स्टूडेंट्स, या गवर्नमेंट ग्रांट इज फॉर मेकिंग अ स्विमिंग पूल या अ लाइब्रेरी, then it would have been a liability. Then it is non-recurring and lump sum. Got it? Hetu Thakkar understood? चलो. Then so government grant का additional information देके confuse मत होना. तो specific purpose अगर होता तो liability, specific purpose अगर normal है, recurring expense है तो income. Then donation for library building. Where do you put donation for library building? Liability. अभी इसका पर्पस खाली बिल्डिंग बनाने के लिए. This is a specific purpose. Endowment fund, liability. Miscellaneous receipts are income. Interest on investments are income. Cultural show income. फिलहाल income. फिलहाल income. We'll deal with the explanation. Sale of old furniture. BV का मतलब क्या होता है? BV का मतलब book value. And 2,600 is sale value. तो sold for 2,600, book value 2,500. minus क्या करोगे? From asset 2,500. 2,500 book value, and 100 rupees becomes your income, profit. Okay, income side. Then go to the last year asset and first finish of that. Last year asset liability देखो. Library building, last year asset comes to this year. Add the extension and depreciation if any, subtract. Library books, last year asset, bring it to this year, sale, purchase, depre. Furniture, last year asset, bring it to this year, sale, purchase, depreciation. Investment in 10% government promissory notes. Investments also last year asset, this year asset, right? But उस पे hidden adjustment है 10% का. इस साल कुछ promissory note खरीदा है? I don't think so. नहीं. तो last year वाले पे कितना interest जमा होएगा? 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000. So how much have you received out of that check? Interest on investment दिया हुआ 1,000. और कोई investment नहीं है तो इसी को belong करेगा वो 1,000. So what does that indicate? What does that indicate? Receivable. 1,000 is receivable. All of you got that? 1,000 is receivable. चलो, तो हिडन एडजस्टमेंट करना है, उस पे नोट बनानी है. देन आउटस्टैंडिंग फीस, कौन सा फीस होगा? ट्यूशन फीस की टर्म फीस? कुछ दिया नहीं, आउटस्टैंडिंग फीस.
ट्यूशन फीस ट्यूशन फीस, मोर रिकरिंग इनकम को अज्यूम करने का, ठीक है। जनरली तो देंगे, नहीं दिया तो ट्यूशन फीस, रिकरिंग इनकम, मोर रिकरिंग इनकम, ट्यूशन फीस। एंड फॉर दिस आल्सो वी हैव टू राइट assumption. यस यू कैन, बट नहीं चलेगा इसमें, मोर रिकरिंग के लिए यू कैन स्किप। ओके, सो outstanding tuition fees, what are we supposed to do last year? Outstanding, add or subtract? Subtract from tuition fees. Okay, second effect is last year asset दिया हुआ है, cash bank is opening balance, capital fund दिया हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है last year balance sheet। नीचे पढ़ो, grant from government का समझा सबको। अगर ऐसे डोनेशन का भी आ सकता है, donation was for meeting salaries, was for meeting day to day expenses, was for meeting revenue expenses, that means donation is income। And donation is for a playground, donation is for library, donation for building, then it is liability। Got it? Endowment fund हो जाएगा फिर। Second point पढ़ो, ये सबसे important है। Cultural show was organized to raise the fund for the extended library building. The net surplus collected is to be capitalized and credited to library building fund। इसका अर्थ क्या हुआ? इनकम माइनस एक्सपेंस और जो भी आया वो ऐड करना है। Exactly, इनकम माइनस एक्सपेंस जो भी आया वो किस में ऐड करना है? लाइब्रेरी बिल्डिंग फंड में ऐड करना है, लाइब्रेरी बिल्डिंग फंड में ऐड करना है। सो विल यू शो कल्चरल इनकम एंड कल्चरल शो एक्सपेंस अंडर इनकम एंड एक्सपेंस? मतलब वहां दिखा के माइनस कर सकते हैं ना, ऐड नहीं। तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वहां पे दिखाओ फिर माइनस करके जीरो करो, फिर वापस लाइबिलिटी में आओ और इधर नेट सरप्लस दिखाओ। इससे अच्छा डोंट शो दैट, यू कैन शो इट अंडर वर्किंग नोट, इनकम एक्सपेंस में दिखाओ ही मत। डोंट शो कल्चरल शो इनकम एंड एक्सपेंस अंडर इनकम एंड एक्सपेंस। डायरेक्टली क्या करो, लाइब्रेरी बिल्डिंग फंड तो है ना तुम्हारे पास, डोनेशन आया हुआ है अपने पास 10,000 का, कैन यू सी दैट? वो डोनेशन में ही ऐड कल्चरल शो इनकम लेस कल्चरल शो एक्सपेंस, हो गया ना सब। 15 minus 10, 5,000 का सरप्लस हो गया उधर, और 10 plus 5 15 टोटल दिख जाएगा। तो एक्सटेंशन भी है, वो भी सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। नहीं भाई, कल बताया था मैंने, एक्सटेंशन इज एसेट। एसेट को बिल्डिंग में से फंड में से माइनस नहीं करना है, एसेट अलग दिखाना है, फंड अलग दिखाना है। आपने बोला था कि रिपेयर्स भी नहीं दिखाना, तो दिखाना क्या है उसमें? हाँ तो उसमें दिखाना है खाली फंड रिलेटेड एक्सपेंस, जो बिल्डिंग फंड पे नहीं होने वाला है। ये कल्चरल शो का हुआ है खाली एक्सपेंस, बिल्डिंग फंड पे कोई एक्सपेंस होने वाला नहीं है अलग से। बिल्डिंग का जो रिपेयर है वो तो एक्सपेंस में ही दिखाना है, बिल्डिंग एसेट में ही दिखानी है। डोनेशन आया तो फंड में ऐड करते जाओ, और बाय चांस ऐसा कुछ कल्चरल शो ऑर्गेनाइज किया या कुछ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया तो उसको इनकम माइनस एक्सपेंस करके दिखाओ। हेवी रिपेयर्स प्रैक्टिकली भी सबट्रैक्ट, बिल्डिंग का पूरा खर्चा बिल्डिंग फंड में से माइनस होता है, बट थियरी में मत करना, यहाँ पे मत करना। यहाँ पे रिपेयर वगैरह सब अलग से दिखा देना एक्सपेंस। तो ऐसे करके तो फंड हर एक साल दिखेगा, तो हाँ तो वो फंड ओवरस्टेट नहीं होगा। हाँ तो जो फंड है ना उसका पैसा बिल्डिंग में इन्वेस्टेड है ऑलरेडी, फंड कम नहीं करना है अपने को। देखो कैपिटल फंड का पैसा और सब एसेट में इन्वेस्टेड है ना, आपका फर्नीचर में इन्वेस्टेड है, लैंड में इन्वेस्टेड है, स्कूल बिल्डिंग में इन्वेस्टेड है। वैसे ये बिल्डिंग फंड का जो पैसा है वो बिल्डिंग में इन्वेस्टेड है, उसको कम क्यों करना है? लेट इट बी एज इट इज। फंड इकट्ठा करो, बिल्डिंग बनाते जाओ, फंड इकट्ठा करो, बिल्डिंग बनाते जाओ। And when we sell that building, तो वो fund तो वैसे ही रहेगा। When we sell that building, that time that fund will be transferred to capital fund. When we sell that building, abhi building is no more in existence, right? So you get money out of that. There will be cash, free cash, which can be used for any purpose on the asset side, right? So that time when you sell that building is no more. So that fund will go to capital fund, transfer it to capital. Okay? So फिलहाल जब तक बिल्डिंग है वो फंड में ही दिखा दे रहा हो। तो यहाँ पर लाइब्रेरी बिल्डिंग का जो कल्चरल शो था वो हर साल नहीं हो रहा है, वो इंडिकेशन है। कल्चरल शो हर साल का रिकरिंग इनकम नहीं है। क्यों ऑर्गेनाइज किया था कल्चरल शो? जस्ट टू रेज द फंड्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, जस्ट टू रेज द फंड्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। अब कल्चरल शो ऑर्गेनाइज किया तो उस पर खर्चे भी हो गए, तो इनकम हुआ 12,000 और एक्सपेंसेस हुआ 7,000। तो नेट सरप्लस कितना कलेक्ट कर पाए हम कल्चरल शो से? 5,000 रुपीज। दिख रहा है वो? तो वो 5,000 आपको इनकम में नहीं दिखाना है, वो 5,000 आपका क्या है? कैपिटल रिसीट है, हर साल इनकम नहीं होने वाला है, नॉन रिकरिंग रिसीट है, वंस इन अ वाइल आपने किया बिल्डिंग बनाने के लिए। समझ आई बात? तो इनकम एक्सपेंस में नहीं दिखाया गया, लायबिलिटी में ऐड और सब्ट्रैक्ट, कल्चरल शो इनकम, कल्चरल शो एक्सपेंस। नेट आपको क्या मिलेगा देखना, ऐसे मिलेगा। लायबिलिटी में विल शो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 10,000 इनर कॉलम, प्लस कल्चरल शो इनकम 12,000 माइनस कल्चरल शो एक्सपेंस 7,000, outer column it will be 15,000, outer column it will be 15,000,
That entire amount is non-recurring, 15,000. 10,000 of donation plus 5 net surplus collected on cultural show. Is that clear? समझा? पक्का? Okay. Non-recurring receipt. Fees receivable are फायदा. वापस fees receivable. कौन सा fees receivable? Assume it is tuition. Add to fees and assets. Salaries payable are 15,000. Add to salary and liability current. अच्छा current year है कि last year है? सब information कुछ नहीं दिया तो अभी सब current year. ऊपर last year का दे दिया हमको अलग से. Okay. नीचे कुछ रहेगा तो they should specify. And depreciate less from asset and expenditure. Rest of the sum was simple. Grant और cultural show ये important था यहाँ पे. Government grant और cultural show का बात समझा? पक्का? All of you. Government grant was recurring के लिए था तो income और cultural show capitalize. Okay? Donation में add और subtract. तो ये एक sum homework है. इसके साथ एक छोटा सा मुफ्त sum है. Sum number 6. Sum number 6 very चिंटू सा sum it is. एक नोट बनाना है खाली सब्सक्रिप्शन का. ओके वो एक कर लेना. तो सम नंबर 6 और सम नंबर 34 2 सम्स आर फॉर होमवर्क. आज शाम तक सबमिट कर लेना. वो 5 मिनट का ही है सम नंबर 6. ओके सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू वेट, अदरवाइज यू कैन लीव. टाटा बाय बाय, सी यू, विल मीट टुमारो.